तो आज मैं एक्चुअली अभी किसी से मिलने जा रही थी बट एज यू नो वी इंडियंस आर ऑलवेज लेट एट द प्लेस सो जो मेरा फ्रेंड है उसको आने में टाइम है सो आई थॉट व्हाई नॉट यूटिलाइज दिस टाइम टू मेक समथिंग यूजफुल फॉर यू गाइस. Hello Tori buddies, welcome back to our video. So today I'm going to teach you some Mandarin phrases which could be super helpful in Taiwan. Trust me, your initial days could be full of adventure, confusion and especially जब आपको टॉयलेट जाना हो, कैसे पूछोगे टॉयलेट कहाँ है, ये कितने का, ये कहाँ पे मिलती है. सो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट मेक ऑल दीज फ्रेजेस आप लोग को थोड़ा सा बता दूँ. ऑफ कोर्स आईजी में तो आपने बता ही दिया, आई एम लाइक अ फुल टीचर स्टाइल. सो टुडेज क्लास इज गोना बी लाइक अ टीचर बट डोंट बी वरीड, super easy and fun. Relax. So, yeah, let's start. So, phrase number one, 这个多少钱? तो अब आप इनिशियल डेज में शॉपिंग तो करोगे ही, या हो कन्वीनियंस स्टोर और मे बी एट अ नाइट मार्केट. सो यू हैव टू आस्क द प्राइस फॉर एनी प्रोडक्ट. सो ऑलवेज शो, point your finger and show to the product which you want to ask price for and say 这个多少钱? That means how much is it? वो हमेशा कैलकुलेटर पे, बिकॉज उन्हें भी इंग्लिश नहीं आती तो वो भी कैलकुलेटर पे ही आपको नंबर्स लिख के दिखा देंगे कि दिस वन इज दिस मच. सो प्रो टिप इज always smile and ask with the price like 这个多少钱? So phrase number two is 我听不懂. इसका मतलब है I don't understand. तो अब आप देखोगे कि कोई भी ताइवानीज आपके सामने आके तेज तेज मैंड्रिन में बोले जा रहा है और आपकी बत्ती हो गई है गर्ल, तो आप उसको कैसे बोलोगे? सो यू हैव टू से दैट आई डोंट अंडरस्टैंड इन मैंड्रिन, वो थिंग पुतोंग. फिर वो धीरे बोलने लगेगा या तो इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करके बताएगा. इंस्टेंट पीस. सो फ्रेज नंबर थ्री इज 车说在哪里? तो इसका मतलब है वेयर इज द टॉयलेट. सो इमरजेंसी सीन अलर्ट. आप अगर मॉल में हो, बस स्टेशन, कैफे और आपको बहुत ज़ोर से जाना है तो आप क्या बोलोगे? किससे पूछोगे कहाँ पे है टॉयलेट? एंड everybody might not understand English, so you have to ask 厕所在哪里? So 在哪里 is where and 厕所 is the toilet. So 厕所在哪里? Trust me, you're gonna thank me later for this in the comments. So next phrase is 我吃素, जिसका मतलब है I'm vegetarian. So veggie gang alert. और अगर आप जा रहे हो ताइवान में और आपको बोलना है कि I am vegetarian और I eat vegetarian only, so you have to say 我吃素, जिसका मतलब है I am vegetarian. And remember, sometimes in Taiwan का मतलब vegetarian में भी they use egg and broth. So you have to say no meat, no egg. That means 我不要肉，我不要蛋. मतलब आपको एग और मीट नहीं चाहिए. वेरी सिंपल, है ना? So your next phrase is to say I don't want something. So maybe you're walking on the street and the street vendor are forcing something on you to buy. तो वहाँ पे मुंडी नहीं हिलानी है ऐसे और ऐसे, इंडिया नहीं है जो समझ जाएंगे. So you have to say 我不要, I don't want. और हमेशा यहाँ पे no का साइन होता है this. So 我不要 is I don't want to buy or I don't want this. अब आपको कुछ अगर किसी से पूछना है, you want to ask something to any other person, so always start with excuse me. So in Mandarin it will be 请问 so this is the Mandarin phrase for excuse me or may I ask something. So remember, if you start with this, Taiwan people consider this to be very polite and respectful. तो अगर आप ऐसे पूछोगे तो definitely help मिलेगी ही मिलेगी. So now is the time to impress your Taiwanese friends or maybe a food stall owner to impress that you like the food.
And how do you say that this is so yummy? So you say 很好吃. तो इसका मतलब होता है the food is delicious. So always remember to say 很好吃, मतलब आपको वो बहुत tasty लगा. And don't forget to do your happy food dance. So last but not the least, here in Taiwan, people are super polite and they will help you in any way they can. So remember to say thank you at each and every time whenever you got some help from them. And you will be appreciated a lot. So how to say thank you? We say 谢谢. And remember, a small bow to thank them. So we say 谢谢. There you go. And if you want to promote your culture as well, so you can say namaste as also 谢谢. तो अब दोस्तों ये रहे टॉप 10 मैंड्रिन phrases for you to use in Taiwan. और ये आपको थोड़ा लोकल बना देगा और थोड़ा ग्लोबल. एंड या 10 हो गए क्या? आई गेस नॉट येट. तो अब सोच लो कि आप गलती करोगे. ऑफ कोर्स गलती तो होएगी, माफ़ी तो मांगोगे. तो क्या बोलोगे? आई एम सॉरी. क्या पता आपने किसी बूढ़े इंसान को टक्कर दे दिया, उनको नहीं आती है आई एम सॉरी, तो आपने तो पूछा नहीं कैसे बोलनी है. तो वहाँ पे आपको बोलनी है तो पूछे. तो इसका मतलब होता है आई एम सॉरी. सो यू हैव टू अगेन टेक अ स्मॉल बो एंड से तो पूछी. तो यहाँ पे ऐसे ही बोलते हैं तो पूछी. तो रिमेंबर दैट. एंड अब आप खुल के बोल सकते हो कि मैं ताइवान में अब कोई फॉरेन तो नहीं हूँ, वो बुश टूरिस्ट, वो शुशंग, मतलब मैं एक स्टूडेंट हूँ यहाँ पे. So I hope this helped you. If you found this video helpful, share it with your future Taiwan gang. And don't forget to tell me in the comments which phrase was your favorite or which was your funniest. So don't forget to like, share and subscribe Story Tales. क्योंकि Story Tales पे ताइवान की जर्नी फन बनाते रहते हैं हम. See you in the next video. ऑफ कोर्स आप बबल टी पीने तो जाओगे ही, तो कैसे ऑर्डर करोगे? तो आपको बोलना है ईबे जंजनाइचा. दैट मीन्स ईबे मतलब 1 कप ऑफ बबल मिल्क टी प्लीज़. तो ये है आपका ऑर्डर करने का तरीका, जहाँ पे आप उनसे बोल सकते हो कि यू वांट हाउ मच एंड विच अमाउंट. लाइक ऑफ कोर्स हाथ से तो दिखा ही सकते हो. कहीं पे डेफिनेटली दे विल हैव लाइक अ इंग्लिश मेन्यू, सो यू कैन आस्क दैट एज वेल to show you the English menu. तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि who taught you such a good Mandarin, अगर good बोले तो मेरा नाम ज़रूर बताना, और अगर पूछे तो who taught you Mandarin, मेरा नाम मत बताना.